Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Virtual Help will help you to solve your small query to complete your task on a computer system. Before I start today's topic, please subscribe my channel and click on this bell icon. When you click on this bell icon, you will see my channel videos on our first preferences, and please share my channel for those people who need a virtual support. As you already know, we started a new chapter and we are discussing about error checking method. In error checking method, we discuss a different type of methods. So today I will just give you a quick review of error checking method. Okay, why it is important and which type of the error checking method will come in CIE or why it is very much important while you are transferring a data from one place to another place. As we already discussed, okay, error checking method have a different type of techniques which can identify easily is your data has been transferred appropriately or not. If your data is not transferred properly, so what the process you can use to identify okay, which type of error you are facing. As we already discussed in the last class, okay, there is always the risk that the data has been corrupted or changed in some way. This can occur whether the data is being transmitted over a short distance or over a long distance. A number of methods exist which can detect error and in some cases actually correct the error. The methods covered in this section are, so we can discuss parity check, then automatic repeat request ARQ, checksum, and after the checksum echo check and check digit. Check digit is not directly linked with this chapter. It will be a part of your P2 when we are discussing our database, and over there we will discuss in detail check digit. But to in this chapter also error checking method, most of the time, according to the past paper, okay, CIE ask in P1, okay, explain what is check digit. There is a always I think in the last year is not question is not there, but there is a always one question which is saying you to explain or to drive the numerical with the help of check digits. इन्होंने जो लास्ट ईयर का प्री रिलीज था उसके अंदर भी चेक डिजिट को इस्तेमाल किया था कि चेक डिजिट कैसे इस्तेमाल होता है कैसे नहीं होता. Basically error checking method, number one question, why you need it. In the first line it's mentioned that when you transferring a data, from one place to another place, there is always a chance of data corruption. Okay, or maybe the data has been changed due to the distance of our data, maybe a short distance, maybe a long distance. चेकसम इज वेरी इजी ट्रू, बट मोस्ट ऑफ द टाइम चेकसम का कैलकुलेशन नहीं आती. कैलकुलेशन जो सबसे ज़्यादा आती है वो आपकी पैरिटी चेक की आएगी या फिर चेक डिजिट की आएगी, जो हम आज डिस्कस करेंगे पैरिटी चेक को डिटेल के अंदर. लास्ट टाइम भी हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था कि व्हाट इज इवन पैरिटी चेक, व्हाट इज ओड पैरिटी चेक. तो व्हाई यू नीड इट टू आइडेंटिफाई. ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन, व्हाई यू नीड टू चेक error checking method. Number one, we said okay, maybe your data has been corrupted or maybe data has been changed. Why the data can be changed? Maybe the data you are traveling, the data you are sending is for the short distance or long distance. Okay, if you are maybe okay, the electricity problem over there, maybe the device shut it down automatically. Okay, the data can be corrupted. Or why you need it, for example you identify and which platform you can use, which platform you will use to identify that the data has been changed or corrupted. For identifying the error, to identify the error you required some error checking methods which is mentioned on your screen: parity check, ARQ,
automatic request, repeat request, or request query. Most of the time they said query as well. Checksum, echo check, and check digit. Check digit is not, again I'm repeating, check digit is not directly linked with your chapter 2. It is a part of database because there is a 6 checks over there to identify the data to be fixed, valid, or validation. Over here, why we are explaining? Because in past few papers, CI asked check digit in P1, and they said, "Okay, solve this question according to your check digit method." A quick review of parity check. Okay, what is a parity check? Parity check is one of the method. Okay, parity check is one of the method to check whether the data has been changed or corrupt. Okay, following transmission is one of the device or medium to another device or medium. अब हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? They very simply they said कि system that use even parity have an even number have an even number of 1 bits, like 1, this is the 1, 1 and 1. So system that use even parity have an even number of 1 bits. It's mean कि how many ones you have in your data. Second part is that the system you are using, okay, it should be has a odd number of 1 bit. How you can identify odd number? Let's say same thing as you are using, it's 1, then another 1, 3 ones, 4 and 5. In the last class we discussed that it's a very easy way. If the question is there, you have to complete the below bit while using a even parity, so you have to just count numbers of 1. Okay. In the first example, when we use even parity, so there should be all the numbers should be in 1. If the number is not in 1 or one box is empty, so you have to write 1 over there. और अगर आप सॉल्व कर रहे हो ओड पैरिटी के अंदर यू हैव टू काउंट नंबर्स ऑफ 1 के नंबर्स ऑफ 1 कितने हैं? 4 है तो इसका मतलब इट इज अ इवन, 5 है तो इट्स मीन इट इज अ ओड. अगर वो इवन है और एम्प्टी बॉक्स का खाली आपके पास है तो यू हैव टू राइट 1. अगेन आई एम रिपीटिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट गेट कंफ्यूज, वो जीरोस को भी काउंट कर रहे होते हैं. जैसे कि फर्स्ट बॉक्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर कितने जीरो है? एक जीरो ये रहा और यहाँ पर है. बहुत सारे बच्चे हमारे पास ये मिस्टेक कर रहे होते हैं कि वो इस नंबर जीरो को भी काउंट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल एक जीरो मेरे से मिस हो गया, ये 4, तो कहते हैं यहाँ पर इवन क्या हो गया? नंबर्स ऑफ जीरो इवन हुए या नंबर्स ऑफ 1? तो जो टेक्निक है पैरिटी चेक की वो सिर्फ वंस को काउंट करती है, वो जीरो को कंसीडर नहीं करती. हाँ, जीरो उस सूरत में कंसीडर किया जाएगा जब आपको वैल्यू सिर्फ कंप्लीट करनी है. ठीक है, जब वैल्यू आपको कंप्लीट करनी है. नाउ जो उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है जो बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा आप इसको समझो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल आता है आपके पास 4 to 6 मार्क्स का. इसको आप अपने ज़हन में बिठा लो. ये मेथड को आपको मैक्सिमम जो सवाल आते हैं या तो ये वाले मेथड से आएंगे जो मेथड आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, या फिर आपको ये वाला मेथड दिखेगा जो पुराना मेथड है कि एम्प्टी बॉक्स है, एक बॉक्स एम्प्टी है, बाकी बॉक्सेस बिट्स बॉक्सेस जो है वो फिल किए हुए, और आपको ये आइडेंटिफाई कराना है कि ये इवन बना है या ओड बना है. वो सवाल में लिखेगा कि कंप्लीट द बिलो बिट्स बॉक्स विद द हेल्प ऑफ इवन पैरिटी. तो यू हैव टू राइट क्या हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 1 इज देयर,
if its counting is 4, so it means it's even, so just write it 0 over there. If there are 3, so just write it 1 over there. But यहाँ पर totally technique changes. Over here they said that there is a one bit which has been corrupted or changed. ठीक है, ये कह रहा है भाई कि यहाँ पर एक बॉक्स आपको दिया हुआ है बिट एंड बाइट का, जिसमें पैरिटी बिट आपको इंसर्ट की गई है कि जो शुरू की जो बिट है वो पैरिटी बिट है, बाकी सारी जो नॉर्मल डेटा आपके पास ट्रांसफर हो रहा है। वो कह रहा है कि इसमें से कोई एक ऐसी बिट है जो 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 के करप्ट हो गई है, ठीक है, जो के करप्ट हो गई है और हमें उसको सही करना है। आप 1 मिनट देखो इस पूरी शीट को ना, 1 मिनट आप इसको देखो, ताकि जब मैं इसको समझा रहा हूँ तो आप लोग को इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी कि बिट कहाँ पर दी गई है, बाइट का कॉलम कौन सा है, रोज के अंदर बिट दी गई है, कॉलम्स के अंदर बाइट दी गई है, हॉरिजॉन्टल किया है हमारे पास बाइट है, वर्टिकली किया है हमारे पास बिट है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली एक बिट का कॉलम दिया हुआ है हमारे को, वर्टिकली एक बिट का पैरिटी बिट का जो है कॉलम दिया हुआ है हमारे को, ठीक है। इस चीजों को आप देखो, डन। सो ये सवाल सॉल्व करने के लिए जो क्वेश्चन है, दे सेड कि टू आइडेंटिफाई द करप्टेड और चेंज बिट व्हाइल यूजिंग अ इवन पैरिटी बिट मेथड। हमें इस बॉक्स के अंदर इवन पैरिटी बिट को यूज करते हुए वो बिट आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, जिसके पास जिसमें जो है वो एक एरर आया हुआ। अब इसको चेक करने के दो तरीके, बेसिकली तरीका तो एक है, दो स्टेप्स आपके हैं उसमें चेक करने के कि आप उसको किस तरीके से चेक करते हो। या तो आप पहले हॉरिजॉन्टल वे के अंदर स्टार्ट करो या वर्टिकल वे में स्टार्ट करो, ये आपके ऊपर, ठीक है। आप हॉरिजॉन्टल वे में किया, फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल वे के अंदर आई वांटेड टू काउंट नंबर्स ऑफ 1, कि हमारे को क्या बोला गया कि इवन पैरिटी बिट है और इस पूरे टेबल में से आपको वो बिट आइडेंटिफाई करनी है जिसमें करप्ट हो चुकी है जो बाइट, या फिर वो रिप्लेस हो चुकी है, और उसको साथ ही साथ आपको क्या भी करना है, सही भी करना है। तो हम हॉरिजॉन्टल वे स्टार्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल वे इट्स मीन कि यू हैव टू काउंट नंबर्स ऑफ 1, के नंबर्स ऑफ 1 जो है वो इवन होने चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। नंबर्स ऑफ 1 6 जो है पहली कॉलम में कितने हैं, 6 हैं, इसका मतलब ये क्या हो गई, इवन हो गई। तो हमने ऊपर एक छोटा सा टिक लगा दिया कि ये हमारी बिट बिल्कुल सही हो गई। हम बिट 2 पे आए, हमने यहाँ पे दोबारा से चेक किया, 1 2 3 एंड 4, ये वाला पार्ट भी बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं, ठीक है। यहाँ पर अब हम आते हैं बिट नंबर 3 के अंदर। ये आपको सीआई के अंदर पेंसिल से करना है ये, ठीक है, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि आपने कहाँ पर कौन सी कॉलम और बिट आपने चेक कर ली है और कौन सी आपसे अभी चेक करना बाकी है। इन द एग्जामिनेशन ऑल द स्टूडेंट डिड द मिस्टेक, वो अज्यूम कर लेते हैं, और जब वो एक पॉइंट पे पहुंचते हैं, ठीक है, जब वो एक पॉइंट पे पहुंचते हैं तो उसके बाद वो ये भूल जाते हैं ये कौन सी बिट थी, क्योंकि हमें पर्टिकुलर एक बिट आइडेंटिफाई करानी है कि कौन से बिट के ऊपर वो एरर हो सकता है या वो एरर आया है। बिट नंबर 3 पे हम आए, 1 2 3 4, इसका मतलब बिट नंबर 3 भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है आपके पास। हमने ऊपर टिक कर दिया, एक इंडिविजुअल चेक लगाया हमने कि हमें ये पता चला कि नंबर्स ऑफ 1 हमने काउंट कर लिए, और ऊपर एक चेक लगा दिया, उससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास किसी भी किस्म का एरर यहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं बिट नंबर 4। बिट नंबर 4 में हम आए, 1 2 3 4 5 एंड 6। बिट नंबर 4 भी बिल्कुल आपकी ओके है, इसको हमने चेक कर दिया। बिट नंबर 5 में हम आए, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर हमें आगे कुछ क्या मिली,
गड़बड़ क्योंकि वी वांटेड टू चेक के ऑल द नंबर्स ऑफ 1 शुड बी इन इवन पैरिटी, बट इन बिट 5 there is a numbers of 1 is in odd parity। तो हमने यहाँ पर आके क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया कि हमें पहला जो एरर मिला है वो एरर कहाँ मिला है, बिट नंबर 5 में मिला है। अब इसमें से कौन सी बिट है वो हमें नहीं मालूम, हमने भी पहले ये आइडेंटिफाई करा है कि कौन सा कॉलम और रो ऐसा है जिसके अंदर ऑड पैरिटी है। हम कॉलम नंबर 6 में गए, सॉरी बिट नंबर 6 में गए, हमने काउंट किया 1 2 3 4, ओके, बिट नंबर 6 भी हमारे पास ओके है, 1 2 3 4 5 and 6, this is also good। bit number 8 1 2 3 4, bit number 8 भी हमारे पास क्या हो गई, करेक्ट हो गई। ठीक है, किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन कि हमने हॉरिजॉन्टल वे में क्या किया, पहले किसी को समझ में नहीं आ रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि नहीं सर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। हमने बिट नंबर 1 हमने पहले जो स्टेप हमने किया बेसिकली, गुड। हमें करना क्या होता है, जब भी ये टेबल होता है इस टेबल के अंदर सवाल पूरा लिखा होता है, कि सवाल मैंने भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया, आपके बुक के अंदर वो क्वेश्चन भी मेंशन है कि द बिलो टेबल इज यूज अ बिट एंड बाइट टू ट्रांसफर अ डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। द error checking method has been used parity check, even parity check, please identify which bit and byte occurred an error। तो हमें बिट और बाइट का एरर निकालने के लिए हमें उसको चेक करना पड़ता है इंडिविजुअल एक एक बिट को। और आपको मैं यहां बता दूं पैरिटी बिट, पैरिटी बिट हमारे पास जो है वो उसमें ये होता है कि आप दो बिट्स का एरर आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, दो बिट से ज्यादा का एरर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपके दो कॉलम में दो बिट्स ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली हो तो पैरिटी बिट कैन आइडेंटिफाई। अगर कोई 3 बिट्स एरर है तो पैरिटी बिट वहां पर फेल हो जाती है। एक चीज और कि जितनी भी एरर चेकिंग मेथड हम चेक करेंगे, कोई भी एरर चेकिंग मेथड 100% एक्यूरेट नहीं है, इसलिए हमें मल्टीपल चेक्स इस्तेमाल करने होते हैं। हॉरिजॉन्टल हमने चेक कर लिया, अब हमें करना है, सॉरी हमने वर्टिकल चेक कर लिया, सॉरी हॉरिजॉन्टल हमने चेक किया, अब हम चेक करेंगे वर्टिकली। हॉरिजॉन्टल मैंने टिक इस्तेमाल किया था, वर्टिकली अब मैं सर्कल इस्तेमाल करूंगा ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि कौन सा हॉरिजॉन्टल है और कौन सा वर्टिकल है। अब हम जाएंगे बाइट वाइज। नंबर्स ऑफ 1 हमें चेक करने, ठीक है, 1 ठीक है, 2 3 4 5 सॉरी 4 5 एंड 6। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, ये वाला कॉलम सही हो गया। तो हमने एक छोटा सा चेक यहाँ पे लगा दिया कि भाई बिट नंबर 1 इज ओके, 1 फाइन, 2 3 एंड 4, बाइट नंबर 2 इज ओके, करेक्ट। नाउ बाइट नंबर 3 0, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, byte number 3 is also okay, byte number 4 1 and 2 also even, it's pass, byte number 4। now byte number 5 1 2 3 and 4, this is also okay, byte number 6 1 2 even, clear, byte number 7 1 2 3 4 5 and 6, byte number 7 also clear, 1 2 and 3। यहाँ पे आपके पास आ गई क्या, गड़बड़। byte number 9 1 2, ठीक है, इट्स क्लियर। लास्ट वन 1 2 3 एंड
4। तो इसका मकसद क्या हुआ कि आपके बिट नंबर 5 एंड बाइट नंबर 8 के अंदर जो है वो एक बिट कहीं पर गड़बड़ की जा रही है। जो बिट गड़बड़ की गई है कि अब इसमें से कौन सी बिट है, क्योंकि दोनों में ऑड पैरिटी है, ठीक है, दोनों में ऑड पैरिटी इस्तेमाल हो रही है, बिट नंबर 5 में और बाइट नंबर 8 में भी। तो हमेशा इसके लिए जो आपका इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, जो पॉइंट आपका इंटरसेक्ट हो रहा होगा, मतलब कि यहां से और आपके पास से बिट और बाइट का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, ये वाला, ये इसका इंटरसेक्ट पॉइंट आ रहा है। ये इंटरसेक्ट पॉइंट कैसे आया? क्योंकि हमने इसके ऊपर एक सर्कल बनाया सबसे पहले, जो बाइट में गड़बड़ थी और जिस बिट में गड़बड़ थी हमने उसके ऊपर सर्कल बनाया। ठीक है, हमने बाइट पे सर्कल बनाया और बिट पे सर्कल बनाया। तो जो उसका इंटरसेक्ट पॉइंट निकला, ठीक है, जो उसका इंटरसेक्ट पॉइंट निकला उससे हमें ये पता चला कि जो इंटरसेक्ट आ रहा है आपका, वही इंटरसेक्ट के ऊपर आपकी बिट चेंज हो गई है। अगर इस इंटरसेक्ट पे जो 1 आ रहा है, इसको अगर हम 0 कर देंगे तो आपका पूरा का पूरा टेबल जो है वो एक्यूरेट हो जाएगा। पैरिटी बिट का काम ये है कि वो एक इंटरसेक्ट करता है कि जहां पे वो आइडेंटिफाई कराता है कि ये बिट ऐसी है जिस पे एरर आया या इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। हो सकता है वो 0 से 1 हो गई हो और 1 से 0 हो गई हो। यहाँ पर क्या है? 1 है। अगर हम इसको 0 कर दें, अगर हम यहाँ पर इस 1 को काट कर यहाँ पर अगर हम 0 की वैल्यू पुट कर दें, 0 लिख दें, अब काउंट करो, 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? 1 एंड 2। तो इससे आपकी पूरी के पूरा जो टेबल जो है वो एक्यूरेटली सही हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसके आंसर लिखोगे तो इसके 3 to 4 आंसर्स होते हैं। एक होता है कि राइट डाउन हाउ यू रीच टू द करप्टेड और चेंज बिट। तो यू हैव टू राइट द होल स्टेप व्हाट आई एक्सप्लेन टू यू, कि वी हैव टू चेक individual bit and byte horizontal and vertically कि all the numbers of 1 should be in even parity। ठीक है, after checking one by one horizontally I identify the bit number 5 has odd parity, and when I'm checking horizontally we identify byte number 8 has a odd parity। ठीक है, the intersect of bit 5 and byte 8 has a problem and we replace 1 by 0। ठीक है, तो ये वो स्टेप्स हो गए। अगर वो पूछता है कि राइट डाउन बिट नंबर वेयर द एरर हैज ऑकर्ड, तो आप लिखोगे बिट नंबर 5। इफ दे सेड कि व्हिच बाइट हैज अ एरर, तो यू विल राइट बाइट 8। ठीक है, दिस इज अ स्मॉल क्वेश्चन। टाइम हमारे पास क्या है? ओके, हमारे पास 7 मिनट्स हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट आपके पास 7 मिनट्स हैं। ये स्क्रीन के ऊपर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख के भी इसको सॉल्व कर सकते हो, आप अपनी कॉपी में भी सॉल्व कर सकते हो, और इसको फटाफट सॉल्व करो ताकि मुझे पता चले कि कौन से बिट और बाइट के ऊपर एरर आ रहा है। Like, share, comment and subscribe my channel.